सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम. So today also we are reading inspired from. Yes. Yes. So from which date it is there today, Dilip bhai? Yeah. July 9. July 9, okay. From Yes. July 9 onwards, okay. Yeah. July 9. And it will come to July 13 or something like that. It will be up to that. Yes. Up to July 16. So today the summary will be done by Mali, okay. Yes. Yes, Swamiji. Pranam, Swamiji. Namaskar. Swamiji, I'm just going topic wise now. I'll do it fast so that we don't waste time. Well, do whatever yet has been done, no difficulty. Okay. Yes. Whatever. Man as the Atman is really free. As man, he is bound, changed by every physical condition. Each person must realize this by his own experience. What is intuition? It is the full rightness of reason, but intuition cannot antagonize reason. On work, Shankara declares all work, good and bad, are against knowledge because they increase rajas and tamas. With sattva alone comes wisdom. On knowledge, jnana yoga. Knowledge can never be created. It can only be discovered, unveiled, by sattva guna and doing virtuous deeds. What is Brahman? Shankara says Brahman is the essence, the reality of all knowledge. Swamiji now speaks on Lord Buddha. Lord Buddha was the only great Indian philosopher who would not recognize caste. The others more or less pandered to social prejudice. Lord Buddha was more brave and sincere than any teacher. He said, "Believe in no book. The Vedas are all humbug. I am the greatest book. Sacrifice and prayer are useless." He was the first human being to give the world a complete system of morality. He was good for good's sake. He loved for love's sake. Christianity is always propagated by the sword. Hashasins, a sect of Mohammedanism, killed non-believers. Buddhism, Mohammedanism, and Christianity are missionary religions, while Hinduism, Judaism, Zoroastrianism never sought to make converts. Yes. Buddhists never killed, but converted 3/4 of the world at one time by pure gentleness. Swamiji now speaks on Sri Shankaracharya. Shankara believed in the Vedas, which he said were a sort of incarnation of universal knowledge. He said the Vedas had come out of Brahman, as man breathes air. He believed the Vedas to be a pramana, a means to know God and get knowledge. Shankara further affirmed that obedience to the ceremonial was not knowledge. The importance of Vedanta. Vedanta is necessary because neither reasoning nor books show us God. He is only realized by superconscious perception, and Vedanta teaches how to attain that. You must get beyond the personal God and reach absolute Brahma.
As soon as we become aware of Advaita, and get the knowledge of the truth, all miseries cease. Superconsciousness to a state beyond, Vidya, according to the Mundaka Upanishad, is of two types. Paravidya or Brahma Vidya is the highest knowledge to reach Para, not para, para. Paravidya. Paravidya. Para. Okay. Paravidya Okay. or Brahma Vidya is the highest knowledge to reach the absolute. Apara Vidya, lower knowledge, is science. It deals with worship, ceremonial, and all secular knowledge. Fools think outside worship is the highest. Fools think works will give us God. Only those who go through the Shushumna, that is, follow the path of Raja Yoga, reach the Atman. In all religions, the superconscious state or the Turiya Avastha is identical. Buddhists and Advaitists are compared by Swamiji. Both religions used logic and took it to its logical conclusion. The Advaitists, using logic, reached the absolute, Purnata, the one unit substance out of which all phenomena manifest. The Buddhists, in contrast, arrived at the conclusion of non-identity, nihilism, shunyata. They became agnostics and denied everything. Both cannot answer certain questions that are beyond the ken of reason. Buddhism cannot explain the genesis of delusion, that there is a background, and Advaitists cannot explain how one became the many. The only answer to both these questions must come from beyond the sense plane. We must rise to the superconscious, to a state beyond sense perception. Thus, religion begins where philosophy ends. Yes. Religion is realization. Religion, the great milch cow that has given many kicks, but never mind, it gives a great deal of milk. Swamiji goes on to speak on bhakti. Love concentrates all the power of the will without effort, as when a man falls in love with a woman. The path of devotion is natural and pleasant. The path of philosophy or neti-neti, however, is tough because it is swimming against the current. With bhakti, knowledge will come naturally because in oneness, all knowledge about the beloved stands revealed. Swamiji then takes up Sri Shankaracharya's commentary. The Vedas cannot show us Brahman. Its role is neti-neti, negative. It can only remove the three veils that cover knowledge. These three veils are: one, the veil of ignorance. This is removed by identifying with the Atman and not the body, mind, and intellect. Two, the veil of desire. Kill desire. Desire are nothing but gilded balls of poison. It is like when we pander to desire, it's like putting a stick in a bee's nest. Our will is nothing but an expression of desire. Three, the third veil, the veil of selfishness, all sense of separateness of individuality. When a person conquers rajas by tamas and then becomes very pure and sattvic, and further then transcends all the three gunas, then alone these three veils are removed.
and misery ceases. Next, Swamiji goes to make a very profound and thought-provoking statement, which is, whenever you learn or gain anything from another man's words, know that you had that experience in a previous existence, because experience is the only teacher. Fearlessness is not possible as long as we have even God over us. We must be God. We are Azad. That we are bound is only an illusion. Now comes the key question. Does seeing depend upon our own effort, Purushkara, or does it depend upon something outside? Here comes his firm and clear answer. It depends on ourselves, our own effort. Takes the dust off the mirror. The mirror does not change. If religion is heart cleansing, its effect on the world is secondary. Philosophy is not got by studying books. The more books you read, the more muddled becomes the mind. Free will is a myth. An individual is not free. He is constantly struggling against bondage. Freedom is only in the Atman. Then he explains how we can become fearless. Now comes his eye-opening statement. The idea of duty is the midday sun of misery scorching the very soul. Let there be action without reaction. Action is pleasant. All misery is reaction. Control the brain and do not read the record. Be the witness and do not react. Only thus can you be happy. The happiest moments we ever know are when we entirely forget ourselves. Work of your own free will, not from duty. We have no duty. Now he talks on philosophy. Concrete, generalized, abstract are the three stages in the process of philosophy. In the highest abstraction, in which all things agree, is the one. Every abstraction is metaphysical. Religion, on the other hand, consists of one, the concrete, that is symbols, yantras, and forms. Then two, the more generalized ideas, mythology or ityas. And last is abstract philosophy. The first are the stepping stones to the more abstract thinking. Religion, the real religion, the highest, rises above mythology, unlike Christianity and Judaism that depends on New Testament, prophets, external things. Modern science has in fact made the foundation, surprisingly, he says, modern science has in fact made the foundation of religion strong by reducing everything to the most abstract atom. This is exactly what the Vedantists call the atom. He whom the self chooses gets the self is true. But here Swamiji emphasizes an important point. Election is true, but put it within, that is, you choose. An external and fatalistic doctrine is horrible. Next, he elaborates on Sri Shankaracharya's glory and thinking. Work and worship both are necessary to remove the three veils mentioned earlier. This is achieved by observing the highest morality, do and do not do, which are the background of morality. Morality, however, belongs to the level of the body and the mind. Even Lord Brahma, though he had a higher standard of virtue, still has a body, subtler. And everyone who has a body and senses will experience both happiness and misery.
Therefore, according to Shankara, unless one identifies with the Atman, which is bodiless, no one can become free, azad. No law can make a person free. Atman, which is bodiless, nothing can give you freedom if you have it already. Cause and effect cannot reach there. And this disembodiedness is freedom. Now comes Shankara's last point, the second last point. Now comes Shankara's unique contribution. He said books cannot teach God, but they can destroy ignorance. Yes. Their action is negative. To hold on to books and at the same time open the gates of freedom is Shankara's great achievement. Conclusion: no action can give you freedom. Only knowledge can make you free. Knowledge is irresistible. Thank you, sir. Finish. You have done very well, but you have completed up to 15th January, 16th July, isn't it? Yes, Swamiji, till the end. 16th July, yeah. So the matter sent was 16th July, no? Up to 16th Yes, July. Swamiji. Yes, Maharaj. Okay. Yes, Swamiji. Okay, you have done a very good job. You have studied it very clearly. That you have carefully studied the whole week, isn't it? No, Swamiji, I only did yesterday and day before. I had no time. Okay. And But I did a lot. I had to cut it so short. I was scared that I'll. No. You have done. You have. Okay. Thank you, Thank Swamiji. So shall we start now? Yes, We can have Maharaj. questions. Yes. Swamiji, I'm not putting my question because it's not relevant because the time is short. Others Okay. can go on. So you are not asking your question. No, I'll ask later on if you have time because this is not so relevant. Others will have more pertinent Okay then. Okay. So now we begin with Tutu. Maharaj. Tutu is there or not? Yes, Maharaj. Okay. Maharaj, एक minute. One. Let me just bring. संजय कितने लोगों ने ज्वाइन किया? महाराज 18 18 हो गए. Good. 18. ठीक है, अच्छा. Maharaj, let's start with the question. Pranam Maharaj. हाँ. Okay. Maharaj, let me start with the question. Yes. First question, Maharaj. Hmm. Shankara declares that all works, good and bad, are against knowledge. I couldn't understand how work is against knowledge. Please. Now you should understand what Shankara means by knowledge. Knowledge means Aham Brahmasmi. Yes. So Aham and Brahma एक हो गया. Isn't it? Knowledge according to Shankara is Advaita knowledge. And karma, work, can never be without duality. उसमें कर्ता, कर्म, करण, ये सब होना चाहिए, isn't it? हाँ, Without a doer, no कर्म can be done. A doer हो गया, and to be done to हो गया, कर्ता, कर्म, करण, ये सब हो गया, तो duality हो गया. From this point of view, Shankara says that karma is against knowledge. लेकिन सोचो तो, how much of work he has done? Yes. Yeah, how much of work he has done? But remember, he did it all knowing full well and fully established that it is mithya. Secondly, we remember that work purifies the heart. Is also there in the discussion, there is already there. Chitta Shuddhi can be done only by Nishkam Karma. So, karma is not directly, karma is indirectly favors knowledge. You can remember, in ultimate sense, in Vedanta, in pure knowledge, there cannot be any karma because it will become duality, Dvaitvad aa jayega, Dvand aa jayega, Karta, Karma, Karan, ityadi.
Is that okay? तो इसके मतलब against means here it is contradictory, like Advaita and duality की जो contradiction है हाँ. उन्हीं के ऊपर he is hinting at. Yes, yes. Philosophically. Yes, ma'am. लेकिन But देखे ना, karma leads अरे to knowledge. लेकिन शंकराचार्य ने कितना खुद कर्म किया, सोचो तो। कितने हाँ, उन्होंने selfless. लिखे हैं, कितने अपने मठों को स्थापित किया है, कितनी उन्होंने व्याख्याएं लिखी है, कितना कर्म किया। 4 धाम। हाँ, 4 धाम को प्रतिष्ठा किया, कितना कर्म किया है। Yes, ma'am. And yet fully knowing that it is mithya. Okay, second question. Second question, Maharaj, page 51. No amount of ignorance can put a barrier between the soul and God. But we always thought that the veil of ignorance hides God from man. Like Ramakrishna also somewhere says that it is you and the God, बीच में एक गमछा रख दिया, बोला कि ये veil हो गया तभी भगवान को दिख नहीं रहा है. हाँ. So please explain in which context it is said when he said no amount of ignorance can put a barrier between the soul and God. Actually appears to be, but यहाँ soul and God are united etc. देखो पूरा passage में देखो कई जगह पे लिखा है soul and God is united. You know there is the description में contradiction है. एक मिनट, कौन सा नंबर बोलो तो उसको पेज नंबर page 51 महाराज. डेट बोलो, डेट बोलो. ये मेरे पास नहीं है, किताब किसके पास है वो बता सकते हैं. ये 51 है पेज नंबर, और पैराग्राफ नीचे से तीसरा है. No amount of ignorance or wrong ideas can put a barrier between the soul and the God. Even if there is no God, still hold fast to love. It's better to die seeking a God than as a dog seeking only carrion. Choose the highest ideal and give your life up to that. Death being so certain, it is the highest thing to give up life for a great purpose. डेट बोलो, हमारी किताब में रही कि उसमें है डेट. Oh, date, okay. एक मिनट सर. Date July 11 Thursday. July 11 Thursday. Yes, July 11th Thursday. 7. No, 11. July 11. July 11. July July 11. Thursday. Yes, ठीक है. एक मिनट, just a minute. No amount of ignorance or wrong ideas can put a barrier between soul and God. ठीक है ना? Yes. हाँ महाराज. यानी अज्ञान से आत्मा, और हमारा क्या है, दुर्भाग्य है हमारा ये है कि हम अपनी आत्मा को भगवान से अलग समझते हैं. लेकिन हम आत्मा और भगवान एक है अद्वैत वेदांत के अनुसार. इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये हमारी भूल है कि हम ये समझने लग गए हैं कि हम आत्मा है और भगवान अलग, हमसे अलग है. That is what he said, that no amount of ignorance or wrong ideas barrier होगा. ये हमारे अज्ञान के कारण प्रॉब्लम हो रही है. Even if there is no God, still hold fast to love. अब ये क्या है कि ये passages appears to be disjointed. वो लव की बात यहाँ पे कहाँ आ गई? यानी जो स्वामी जी ने बोला होगा और जिसने रिकॉर्ड किया है ना इंस्पायर टॉक्स को, वहां पे उसके अंदर there is some break. Even if there is no God. Now पहले सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को they are not disconnected. अभी तो मान लिया है कि सोल और गॉड दोनों सेपरेट नहीं है, वन है. और अब कहते हैं if there is no God, still hold on to fast. That is all right. In itself, love is important. That is all right. It is better to die seeking God than a dog seeking a carrion. That is all right. You try, भगवान मिले भी न भी मिले तो भी विषय के तरफ मत जाओ. विषय तो मिल रहा है, मुझे विषय का आनंद दूंगा, ये नहीं करो बाबा.
you become like a dog. भगवान न भी मिले, यही बोल रहे हैं स्वामी जी कि भगवान न भी मिले तो भी भगवान के लिए मर जाओ. Choose the highest ideal, give your life up to that. ठीक है? That being so certain, it is higher thing to give up life for the greater good. Is that okay? Yes. अच्छा. हाँ महाराज, मतलब वही थॉट्स वाइज तो समझ में आया. सो व्हेन ही सेज नो अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस कैन पुट ए बैरियर, व्हाट ही मीन्स दैट सोल एंड गॉड इज वन, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. और हम जितना भी इग्नोरेंट हो, लेकिन ये ट्रूथ तो है ही है. That is what it is our limitation that we are not realizing that, but it's in actuality कोई बैरियर है ही नहीं. ठीक महाराज. Third question. Then question page 55 Maharaj. Swamiji says the idea of duty is the midday sun of misery. But again after some time he says work of your own free will, not from duty. But we are told in the Gita that do your duty without aspiring for result. For me personally, practicing detachment becomes easier when I do the work as duty. So will you please elaborate, explain ऐसा है. that idea of duty? देखो Misery क्यों बोल रहे हैं? You know, say for example, एक बच्चा है, बच्चे को माँ ने कह दिया ये करो तो उसने कर दिया. उसको क्या ड्यूटी का आइडिया है क्या? He does not have any idea of duty. I have to do this नहीं. माँ ने बोल दिया है कि ये ला दे, ये कर दे, उसने कर दिया. वो तो खेल है. It is a child, it is a play for him. So duty becomes a bondage, but you consider it is God's play. Is no difficulty. That is why get bound by duty? Gita is for those who are too bound by the idea of doership. मैं करता हूँ तो अच्छा, तुम करता हो तो फिर इस भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो, उसके शरणागत फल को छोड़ दो, इसलिए वो करना है. For those people who for whom duty is very important, they have very strong idea of duty. But then I said, it is better duty, it is better than duty is love. ये भी है ना? Out of love you do it. Then I am not my duty. My mother is taking care of the child not out of duty. It is love. This is what Swamiji wants to say. अच्छा. महाराज जी इसी के अंदर एक कंटिन्यूएशन में है, तो सवाल पूछ दूं क्या? The idea of duty is the midday sun of a misery of scorching the very soul. Okay, drink this one drop of the nectar and be happy. I am not the doer. This is the nectar. इसका मीनिंग हाँ वही तो सोचा हो कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं डूअर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म नहीं करता. ये शरीर मन इत्यादि करते हैं. मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ. न कर्म है मुझे, न करता है, न करण है. मैं आत्मा हूँ. ये नेक्टर है. ये नहीं, पर दिस इज द नेक्टर. इसका मीनिंग क्या? दिस इज द नेक्टर. नेक्टर यानी क्या? ये अमृत का ज्ञान. ये ज्ञान अमृत है. हाँ, कि आई एम नॉट द डूअर. ओके, अब तुम बोलोगे भाई ड्रॉप बताइए, फिर अमृत किसकी है, कहाँ से लाएंगे आप दवाई? बराबर. नहीं महाराज, इसके मतलब गीता में जब अर्जुन को बोल रहा है स्वधर्म करो, और युद्ध जब तुम कर रहे हो, ये तुम अपने ड्यूटी फॉर योर कास्ट एंड सिचुएशन उस हिसाब से आप करो एंड डोंट गेट इन्वॉल्व. यही तो बोला है. ना, तो इसलिए ये उसके ऊपर एक हायर लेवल पे बोल. इससे हायर लेवल है. तो वो अर्जुन इज टू बाउंड बाय माई सेल्फ. खुद का मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं उसमें बहुत ज्यादा है. तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम निस्वार्थ भाव से करो, सरेंडर करो ना, डू योर ड्यूटी. बिकॉज ही हैज गॉट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डूअरशिप. अहंकार है करने वाले का, और ड्यूटी का भाव है, इसलिए ये बात है. तो गीता का जो भाव है, इट इज एट ए मच लोअर लेवल. As a matter of fact, when you go to Bhagavatam, yes man, वहाँ पर अज्ञान की बात हो, प्रेम की बात हो रही है, तो वहाँ पर ड्यूटी से ऊपर चलेगा. Maharaj, in the battleground, the sense of love cannot come in, na?
बैटल ग्राउंड में तो आउट ऑफ सेंस ऑफ लव तो नहीं हो सकता है ना, तो वहां पे तो बैटल में तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली नहीं मतलब मे बी वही जो सेकंड दूसरा अध्याय में नहीं हुआ, लेकिन बाद में तो भगवान भी बोल रहा है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नाव में हाँ 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 किंचित भी कर्तव्य बाद में जाके वो बदल गए ना भगवान। तो हाँ। इनिशियली तो दैट आइडिया इज वेरी क्लियर। Even in Gita, you get a clear indication that there is something higher than beauty. Yes, Maharaj. Okay. Chalo. Now I understand. Fourth Then question. question 4, Maharaj. Maharaj. Page 58, Swamiji says, the result of works and the result of knowledge are two different things. Then in the next page, we find at the end of the paragraph, he says, work and worship lead to the same result as Advaita. How can you resolve the contradiction? You see, they are all disjointed, frankly speak. Hmm. और स्वामी जी ने एक दिन बोला, उसके बाद में बोला, बातचीत में किसी ने आज थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, उसके बाद में किया, ये कॉन्टेक्स्ट बदल गया। हाँ बिल्कुल बदल, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। हाँ महाराज। चलो, तो जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? When he says the result of works and the result of knowledge are two different things. बट निष्काम कर्म के भी मतलब जैसे गीता में बोल रहे हैं कि कर्म भी जहाँ ले जाएगा ज्ञान भी उधर ही ले जाएगा, तो रिजल्ट तो डिफरेंट नहीं हुआ। स्वामी जी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, केवल निस्वार्थ कर्म नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है। यहाँ पर तो निस्वार्थ कर्म की बात नहीं कही गई है। तो कर्म करोगे तो आपको तुमको फल मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। और ज्ञान जो है वो दूसरी चीज है। मतलब कर्म से तो चित्त शुद्धि होगा, कर्म से उसका बाद ज्ञान होगा। निष्काम कर्म से होगा, नहीं तो नहीं होगा, केवल कर्म से नहीं होगा। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होगा, उसका बाद ज्ञान होगा, ज्ञान होने से बाद ज्ञान होगा। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। ओके, ठीक महाराज। देवाशीष, चलो योर क्वेश्चंस। हाँ महाराज जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन महाराज जी, पेज नंबर 45, quote, when a man attained to the Atman state, he can take a body, making it to suit himself, he is above the law. What does it mean, Maharaj ji? You see, I cannot explain whether it is possible. Then if someone has known that I am the Atman, can it at will take the body of whatever body he likes? I don't understand that. But once he has attained the Atman, he becomes free. तो उसके बाद में फिर वो चाहे, मुक्त होने के बाद में वो चाहे तो फिर दे सकता है। ये अवतारों के लिए संभव है, जीवन मुक्ति के लोगों के लिए संभव है। जो भगवान जगत कल्याण के लिए आते हैं वो शरीर धारण करते हैं। सामान्य व्यक्ति जो है वो अपना आत्मा को जान दिया तो मुक्त हो जाए, फिर नहीं आता। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, द फुल राइटनेस ऑफ रीजन इज इन इंट्यूशन, बट इंट्यूशन कैन नॉट एंटागनाइज रीजन। नो, इंट्यूशन you understand ना? Yes. इंट्यूशन इज समथिंग, अंतर्ज्ञान, जैसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अंतर्ज्ञान, सहज ज्ञान, spontaneous knowledge. Now this spontaneous knowledge is higher than reason. That is the point. अच्छा, हाँ, अपने you go on doing chitta shuddhi, doing service, doing unselfish work, and what will happen? You will get a stage when you will automatically get knowledge, which is pure knowledge, and this will not come out of, this has not come out of reason, but it does not contradict reason, it is not against reason. That is the point, Swamiji. Thank you, it is beyond reason, higher than reason. Thank you महाराज जी, तो समझ में आया तुमको। थर्ड क्वेश्चन है महाराज जी, रामानुजा attributes consciousness to God. The real monoists attribute nothing, not even existence in any meaning that we can attach to it. Ramanuja declares that God is the essence of conscious knowledge. तो इसमें है कि ये क्या क्या है, समझ में नहीं आया ये चीज।
Now, what's your question? Now, I'll explain the two. क्वेश्चन ये है कि अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस व्हेन डिफरेंशिएटेड बिकम्स द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा, देखो, मोनिज्म, स्वामी जी बोलते हैं ना, अद्वैत वेदांत, वेदांत मोनिज्म की बात कर रहे हैं ना। मोनिज्म क्या है? उसमें कुछ नहीं है, नेति नेति। क्या ब्रह्म है? क्या है? नेति। आत्मा है, नेति। सब नेति नेति, सब निगेटिव किए जा रहे हैं। लेकिन रामानुज क्या कहते हैं? ये विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं भगवान जो है वो क्या है? चैतन्य ज्ञान स्वरूप, कॉन्शियस नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज। तो आप कल्पना कीजिए भगवान क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर नॉलेज। और अद्वैत वेदांत क्या कहता है? नेति नेति, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। सो यानी ये है एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉलेज। चैतन्य ज्ञान स्वरूप, दिस इज है रामानुजा। अद्वैत वेदांत शंकराचार्य नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। सो ओनली नेति नेति, शिवोहम, नाम दे दिया शिवोहम। तो यहाँ बोल रहे हैं कि रामानुज के अनुसार जो ब्रह्म या भगवान है वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, ये याद रखो। और अद्वैत वेदांत के अनुसार वो चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम बोलते हैं, लेकिन वो उसके पहले भी ना 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 बोलते जाते हैं। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। न च प्राण संज्ञो न मे पंचवायु न वा सप्त धातु न वा सप्त कोशः चिदानंद रूप है शिवोहम शिव। नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रामानुज के अनुसार पॉजिटिव चीज कुछ भी है भगवान में। दैट इज द पॉइंट हियर। हाँ जी महाराज जी, अल्टीमेटली तो आत्मा पे पहुंचता है ना, ना ना करते करते, नेति नेति करते करते आत्मा पहुंचता है ना। वो चैतन्य, वो आत्मा का स्वरूप क्या है ये बता रहे हैं। चैतन्य ज्ञान स्वरूप, जो हमारा रामानुजाचार्य जो है वो ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा महाराज जी, what is the difference between monism and monotheism? मोनोथीइज्म का अर्थ है एक ईश्वर, भगवान। जगत को मान रखा है, एक ईश्वर है, 10 ईश्वर नहीं। यहाँ हमारा पॉलीथीइज्म है ना। जी जी जी। तो ये शिव भी है, विष्णु भी है, दुर्गा भी है, काली गई है, पॉलीथीइज्म हो गया। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस इज ए मोनोथीइस्टिक रिलीजन। हाँ, मोनोथीइज्म। जी जी, जीसस तो प्रोफेट है, वो ईश्वर एक है। ठीक है, ठीक है। महाराज जी, बी पार्ट में जो था ना, अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस व्हेन डिफरेंशिएटेड बिकम्स द वर्ल्ड। ओके ओके, वही तो बोल रहा हूँ। अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस इज निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंस नहीं हुआ, निर्गुण है, निराकार है ब्रह्म। सगुण होने पर ब्रह्म संसार हो गया, डिफरेंशिएटेड होने पर भी संसार हो गया। ठीक है जी महाराज जी, जी महाराज जी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं महाराज जी। रीजन हेल्प्स इंस्पिरेशन, बुक्स एंड रियलाइज्ड रीजन और इंडिविजुअलाइज्ड परसेप्शन बोथ आर प्रूफ्स ऑफ गॉड। क्या हुआ? रीजन हेल्प्स, हाँ, हेल्प्स इंस्पिरेशन। यस। Books and realized reason or individualized perception both are proofs of God. जस्ट ए मिनट, कौन सा Question number 4, page 47. Question number 4. नहीं, जो तो उसमें पर मेरे पास वो तो मेरा जो है ना इसके अंदर है, मोबाइल फोन में है। अच्छा, इसमें बताया क्वेश्चन नंबर 4 में, रीजन हेल्प्स इंस्पिरेशन, बुक्स एंड रियलाइज्ड रीजन और इंडिविजुअलाइज्ड परसेप्शन बोथ आर प्रूफ्स ऑफ गॉड। मैं
टेक्स्ट पे जाता हूँ। ना पेज नहीं, तुम डेट जुलाई 10 पेज पेज 47 ना 47 क्वेश्चन 4। डेट 10 10th July okay, just a minute. लास्ट क्वेश्चन में लास्ट कितने? पेज एक मिनट वेट। Knowledge of Vedanta is necessary. You must go beyond personal God. Shankara says God is to be reasoned on because the Vedas says so. अच्छा वेद महाराज की जी, बात हो रही, तो वेद की बात है। उसके बाद में कहा गया no other way from an universal belief, Shankar all inclusive Vedas की बात हुई है। उसके बाद में उसके पहले की बात में ये महाराज जी इसका लास्ट पेज नंबर 47 का लास्ट में है, शंकरा says God is to be reasoned on because the Vedas says so. शंकराचार्य वेदास में बिलीव करते थे। Reason helps inspiration. Books and realized reason or individualized perception both are proofs of God. yes, ठीक है। Vedas are continuing sort of embodiment, बोला ना। Vedas reason helps scriptures. Now what is your question? My question is कि how reason helps inspiration? Shankara says God to be reasoned about, because Yes. Vedas say reason helps the scriptures and one's own realization. Why should it not be? When you realize reason, when you reason, you are able to think that I am not the body, I am not the mind. They are changing. I am Atman. So by that reason helps the scriptures and one's own realization, isn't it? Yes. But Now we it's go clear. on feeling I am not the body. मैं बॉडी तो परिवर्तित हो रही है। जो बचपन में बॉडी थी वो बदल गई, तो बॉडी में नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा बना हुआ हूँ। So reason has helped me in realizing my own nature. This is very clear. जी महाराज जी समझ में आया। थैंक यू महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये जाते हैं। रीजनिंग मतलब महाराज ये मनन हो गया ना, जो श्रवण मनन जो तो बोलते हैं, ये मनन की रीजन बात यहाँ आ रहा है। पर रीजन बोला है इसको। अब यू में के वो उसको श्रवण बोल मनन, हम मनन बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे? स्वामी जी ने उसको रीजन कहा। हाँ जी महाराज जी, ये सही वो तो बताया, मनन ही सही वर्ड है। यस राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में द वर्ल्ड हैज कम टू नो गॉड थ्रू द वेदास, नो अदर वे देयर इज। माय क्वेश्चन इज हाउ इज दैट द वर्ल्ड हैज कम टू नो गॉड थ्रू द वेदास? Read the whole of it. The world has come to know God through Vedas. No other way is there. And so universal, this belief held by Shankara in all its inclusiveness of Vedas, that there are even a Hindu proverb that if a cow loses, one man loses a cow, he goes to the Vedas to look. ये वेद को जो कहा है, वेद को इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे that is all right. वे अप और पौरुषय हैं, that is they are not been created by human beings. They came to the guru, to the acharyas, to the rishis as inspiration. और ज्ञान यानी वेद की ऐसी मान्यता है कि सारा ज्ञान जो है वेद में है, ये बात कर रहे हैं। That is all. Okay महाराज जी समझ में आया। Now next is question number 5, page 48 में that which says I is Brahman, but although we day and night perceive him, we do not know that we are perceiving him. As soon as we become aware of this truth, all misery goes. So we get knowledge of the truth. My question is how to reach the truth? श्रवण मनन निधिध्यासन। अच्छा, पहले सुनो,
उसके बाद मनन करो, और मनन करके जो कंक्लूजन आया उस पर पकड़े रहो। यानी आपने विचार किया मैं शरीर नहीं हूँ, समझ में आ गया ना, वेरी क्लियर। मैं मन नहीं हूँ, मन तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अपने आप को मन मानता था। मैं इससे भिन्न कुछ आत्मा हूँ, हाँ आत्मा हूँ। अब कॉन्स्टेंटली निधिध्यासन करो, कॉन्स्टेंटली सोचो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो कंक्लूजन निकला है उसको पकड़े रहना, दिस इज कॉल्ड निधिध्यासन। इसके द्वारा आप जो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा श्रवण निधिध्यासन के बारे द्वारा वो वहां तक पहुंचे। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। डज द नॉलेज कम बाय एक्शन? नो, क्लियरली है। That means we should not do any action अरे which does not give us knowledge. चित्त नॉलेज के लिए नहीं, चित्त शुद्धि के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो नॉलेज भी नहीं आ सकेगी। नॉलेज आएगी समझ में नहीं आएगी तुमको। जी महाराज जी, थैंक यू महाराज, थैंक यू। How is that knowledge does not come by sacrifice? सैक्रिफाइस ये यज्ञ, यज्ञ जो है उसमें द्वैत बना रहता है। ऐसा कर्म करेंगे तो उससे स्वर्ग में जाएंगे, अग्निहोत्र में ऐसा ऐसा फल मिलता है। ये सब जो सेक्रीफाइस है ये द्वैत में ही है। ओहो, हाँ, यानी ये जगत के सत्य को लेकर ही है, जगत के सत्यत्व पर आधारित है। इसलिए उससे कैसे हो सकता है, समझो तो। अच्छा। ये तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है ये। इसीलिए लेकिन वेदों में इतना वर्णन किया गया क्यों? क्योंकि ज्ञान के अधिकारी कितने हैं भाई? चित्त शुद्धि नहीं हुई है, भोग की इच्छा है, स्वर्ग जाने की इच्छा है, तो ठीक है तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ करके तुम्हारा थोड़ी चित्त शुद्धि होगी, तुम्हारा भोग हो जाएगा, भोग मुक्त हो जाएगा, फिर जन्म होगा तुम्हारा। ये यज्ञ का चक्कर है। तो इससे कैसे ज्ञान कैसे होगा? जी महाराज जी, जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विदाउट मदर लव नो क्रिएशन कुड कंटिन्यू। विदाउट मदर लव नो क्रिएशन कुड कंटिन्यू। व्हाट इज योर क्वेश्चन? 49 में है कि ये 49 पेज में है। व्हाट दैट इज दैट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? यू एक्सप्लेन अस। July 11 Maharaj, Thursday. नहीं नहीं, मेरा ये कहना है नो क्रिएशन इज विदाउट लव, मदर्स लव देयर कैन नॉट बी एनी क्रिएशन, इज इट? यही क्वेश्चन है ना? Now what is the question? Is it so clear? You explain it. महाराज जी अभी समझ में आया महाराज जी, इसको स्किप करते हैं। समझ में आया महाराज जी। अरे ये तो क्या, प्रेम के बिना, माँ के प्रेम के बिना कुछ संभव है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न क्यों करते हो? अच्छा ठीक है महाराज जी। पेज नंबर 55 में है क्वेश्चन नंबर 7। दिस वर्ल्ड इज जस्ट ए जिम्नेशियम इन व्हिच वी प्ले, आवर लाइफ इज एन इटर्नल हॉलिडे। हाउ इज इट दैट द वर्ल्ड इज ए जिम्नेशियम? पूरा पेज नंबर वो क्या है तुम्हारा, वो कौन सा? 55 पेज नंबर में है। दिस वर्ल्ड इज जस्ट ए जिम्नेशियम इन व्हिच वी प्ले। डेट बोलो, डेट। अच्छा मैं बता रहा हूँ महाराज जी, एक मिनट। 13 जुलाई, 13 जुलाई। अच्छा हाँ 13 जुलाई। हाँ क्या है बोलो? This world is just a gymnasium in which we play. Our life is an eternal holiday. This world is just a जिम्नेशियम, खेल का मैदान। Yes. और यहाँ पर हम खेल रहे हैं, और अगर हम इसे खेल रहे हैं तो फिर ये मजे का खेल है ना, विच इज अ प्ले।
अगर इसको ये मान लिया कि हम संसार में आए हैं, ये खेल का मैदान है, भगवान ने भेजा है, खेलो, तो मस्ती से खेलो, ड्यूटी नहीं है, वी हैव नो ड्यूटी, वर्क ऑफ योर ओन फ्री विल, नॉट फ्रॉम ड्यूटी। स्वामी विवेकानंद की ड्यूटी नहीं थी, अपनी इच्छा से प्रेम से जगत का कल्याण किया उन्होंने। सो संसार में रहो, आनंद से रहो, लोगों का कल्याण करो, लेकिन ड्यूटी के रूप में मत करो। ये समझो कि ये जगत जो है ये प्लेग्राउंड है, और हमारा जीवन जो है एक हॉलीडे है। ये विचार एक भाव है, इसको लेकर संसार में रहना चाहिए। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सन्यासी कैसे हैं, सोचो तो सही। हम ये सन्यासी लोग कैसे हैं, बड़े मजे में हैं, है कि नहीं? हाँ और जी जब हम महाराज सेक्रेटरी भी थे, डॉक्टर भी थे, तो वे ड्यूटी मस्ती से काम करते थे, जी महाराज। है कि नहीं? हाँ जी महाराज। जरा सोचो तो सही, महाराज इतना काम करते हैं, इतना प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, क्वेश्चन है, लेकिन मस्ती से रहते हैं, ये एक खेल के लिए रूप में रहते हैं कि नहीं? जी महाराज। सतीश क्या बोल रहे थे? महाराज हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? हैं? महाराज हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? हमारी इतना ये सोचना इतना मुश्किल क्यों है? हमें तो नहीं प्ले ग्राउंड लगता है ये तो जानते, हमको तो देख रहे हो ना कि हम मस्ती में है, सब काम करते हुए भी। ऐसा नहीं कि हम तो सेक्रेटरी भी थे वहां पे चंडीगढ़ के, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब काम करते थे, लेकिन मस्ती में थे कि नहीं? अब तो क्या रिटायर्ड हो गए, तो कुछ बोलोगे आप कुछ काम वाम नहीं है, अपनी मस्ती में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेक्रेटरी थे तब भी मस्ती में थे, और जब डॉक्टर थे तब भी मस्ती में थे, रोज 8 घंटे काम करते थे, इमरजेंसी करते थे, सब भी मस्ती में थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। इट वॉज ए प्ले। अब ये पढ़ो इसको, द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, नहीं वो क्या है, वर्क ऑफ योर ओन फ्री विल। सतीश तुम फ्री विल से नहीं कर रहे हो, तुमको तो लग रहा है ड्यूटी है मेरी। बॉन्डेज में है महाराज, हम बॉन्डेज में। बॉन्डेज में पड़े हुए हो, हमेशा लग रहा है कि मैं बॉन्डेज में हूँ, बाप रे। Also Maharaj ji, desires are there. Desires are also there, yes, that is true. महाराज जी ये हिंदी में लिखा है, स्वाधीन भाव से जो खोलकर जीव खोलकर काम करो, कर्तव्य के भाव से काम मत करो। हमारा कर्तव्य कुछ भी नहीं, ये जगत तो खेल का एक अखाड़ा है, हम यहाँ खेलते हैं, हमारा जीवन तो अनंत आनंद होगा। तो वही तो बोल रहे हैं, we should not feel that we are doing duty. अरे तुम बाबा दिलीप भाई, तुम ये सोच लो कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, और काम करो। तुम सोच लो कि मेरी ड्यूटी कोई नहीं है, कितना सोचो ना महाराज। अब जो करना है उसे करो। ओके जी जी, है ना, वही कर्म बिना ड्यूटी के। हाँ, ये खेल है, मजा है। अच्छा। हाँ, शिवानी क्या बोल रहे थे? शिवानी जी कुछ पूछा था ना शिवानी ने? हाँ बोल रही। शिवानी जी चलेगा। महाराज मेरे क्वेश्चन पहले ले लो, मेरी ड्यूटी है, मैं मंदिर में जाना है। जाओ, बोलो। महाराज जी लास्ट क्वेश्चन था महाराज जी, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो हो गया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा चलो महाराज शिवानी। अच्छा सतीश बोलो। अच्छा महाराज, लास्ट क्वेश्चन जुलाई 9 में अभी इन्होंने पूछा देवा से, इसने महाराज ये क्वेश्चन, पर आई थिंक इट इज लिटिल डिफरेंट। Ramanuja attributes consciousness to God. Real monist attribute nothing. ये मैं डिफरेंस समझना चाहता हूँ महाराज। अभी तो बोला ना, क्या डिफरेंस है? देखो रामानुज जो मानते हैं भगवान जैसी चीज है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, एग्जिस्टेंस है, जो सत्य है, चित है, वो सब एक ही है। और मोनिस्ट नहीं मानते ये। लेकिन वेदांत कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। वो कहते you yourself is a consciousness, वो क्या कहता है? नहीं, वो बात नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेति। हाँ राइट।
कॉन्शियसनेस भी नहीं कह सकते हम, ये भी नहीं कह सकते नहीं 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 कह सकते, वो स्वामी जी ही राइट बताना चाहते राइट राइट महाराज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, राइट हैंड में, that says I is Brahman, but although we day and night perceive him, we do not know that we are perceiving him. Maharaj, how are we are perceiving Atma day and night? हमारे पास तो सेंसेस है, माइंड है, हम उससे आत्मा को कैसे perceive कर रहे हैं? इसलिए ये सेंसेस और माइंड के कारण नहीं देख पाते हैं, इन्हीं के कारण हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं, we are not हाँ, यही perceiving. तो वो ये आवरण जो है ये मन और आत्मा इंद्रियों के कारण ही हो रहा है। जी जी महाराज, तो हम नहीं, this means we are not perceiving आत्मा. No, you are आत्मा is not. perceiving आत्मा. Actually you are perceiving Atman, but with उसके पीछे बीच में एक आवरण लगा हुआ है ना, आवरण लग गया महाराज. जी जी वो बार बार माइंड और में कपड़ा लगा दिया और बाद में उसको देख रहे हो, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रही है। जी जी महाराज. तो महाराज जी, माइंड और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। हाँ, माइंड और आत्मा, माइंड तो है वो आत्मा है, विरुद्ध है। माइंड को हटा लो, समाधि में क्या करते हैं, माइंड को हटा देते हैं। जी जी जी। My next question is, the Christians in India once numbered 3 million. Now they are 1 million. How could the number of Christians decrease during the rule of English instead of वो बढ़ने क्या चाहिए बोला थे, कम तुम? कैसे हो? प्रश्न क्या है? आज वो इंडिया उस समय जो था तब क्या बोल रहे थे स्वामी जी? मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्रिश्चियन नहीं महाराज, हाँ जी हाँ जी, वो कह रहे कम हो गए, कम कैसे हो गए महाराज? क्यों, कौन कौन कम हो गए? The Christians once numbered 3 millions, हाँ। now they are 1 million. तो ये कम कैसे हो गए महाराज? क्योंकि बुद्धिस्ट रिफर्ट हो गए। नहीं, ऐसा है कि वो इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। इंडिया के लिए बोल कम, many of them 1 million हो गए. मैं पता नहीं, many might be got converted into Hinduism। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं कह सकते महाराज. और अभी जो है भी हो सकता है कि बर्थ रेट उनका कम होगा, पता नहीं। अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट है वो 2.7 करोड़ हैं क्रिश्चियंस, दैट इज 2.3%। 2.3%। अब तो बढ़ गई बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, July 12 last para, repeating the word, the unseen thought is aroused, and as a result, a seen effect is produced. But how does this seen effect is produced? क्या है? God or method? वो कह रहे हमारे स्वामी जी कह रहे हैं, रिपीटिंग द वर्ड्स, हम शब्द का नाम जपते हैं तो एक थॉट इज अराउज्ड, थॉट पैदा हो जाती है और उसका एक रिजल्ट, एक सीन फैक्ट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि एक कॉन्क्रीट चीज जो है पैदा हो जाती है उसमें से। क्या है इसको करने से, जब करने से क्या है? बोलो तो कहाँ पे है, पेज नंबर बोलो तो। ये जुलाई 12 लास्ट पैरा, जुलाई 12 जुलाई लास्ट पैरा, 12 जुलाई, 12 जुलाई लास्ट पैरा, लास्ट पैरा। अच्छा, thought is the power of the word, the word is the expression of the thought, यही तो? जी जी, repeating the words, the unseen thought is aroused, and as a result, a seen effect is produced. हाँ, तो क्या है कि रिपीट, भगवान के नाम का जप करोगे तो रिपीटिंग द वर्ड अनसीन थॉट इज, तो अभी शब्द ही सुनाई दे रहा, उसके पीछे विचार हम नहीं जानते थे। राम राम शब्द दे रहे हैं, जो कुछ को मालूम नहीं है राम का अर्थ क्या है, लेकिन जब राम का शब्द बार बार उच्चारण करेंगे तो उसके पीछे जो विचार अभी तक नहीं देखा था वो वापस उठ जाएगा, डेफिनेटली तो होगा। और इसलिए वो अभी तक राम राम करते करते पहले राम नहीं था, अब आगे सामने आ जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा, राम का दर्शन हो जाएगा, सीन इफेक्ट, कंक्रीट हो जाएगा महाराज, कंक्रीटाइज हो जाएगा। ठीक महाराज, ये मैटर के मामले में भी ऐसा कह सकते हैं, जैसे जो यूनिवर्स है तो वो भी ऐसे शब्द से पैदा हुई है। अच्छा नहीं, मैटर यानी अगर आप
और लड्डू 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 कोई आदमी करता जाए तो कभी आ जाएगा लड्डू। हाँ जैसा कह सकते हैं। लड्डू लड्डू करते संसार में लोग जो है वो यही तो करते रहते हैं, पैसा 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 पैसा, तो पैसा आ जाता है तो। हम ये भी कहते हैं ना, शब्द ब्राह्मण से जो शब्द से जो अरे ये तो शब्द की बात तो यहाँ पे हो रही है, ये तो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम जप करोगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। जी महाराज, जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, जुलाई 13 महाराज, इफ माइंड इज कंपाउंड एंड बाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटसाइड फोर्सेस। जुलाई 13 में है महाराज। ठीक है ठीक है, ये जो है वो माइंड इज ए कंपाउंड, ये उसने भी पूछा है, ये शिवानी ने भी, यानी उसने मारिन ने पूछा है, किसने पूछा है? एंड बाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटसाइड फोर्सेस, देन हाउ इज द कांसेप्ट ऑफ फ्री विल। हमारे नेक्स्ट पैरा में कहते हैं फ्रीडम इज ऑफ द विल एज इट वाज बिफोर इट बिकेम बाउंड। ये नहीं समझा है हमारा क्या है एग्नोस्टिक फ्रीडम क्या है, देखो मुझे पढ़ना पड़ेगा ये महाराज पैरा। जुलाई एवरी कंपाउंड मस्ट बी हेल्ड टुगेदर। अच्छा, man cannot hold everything philosophical. Agnostic says is only proof, consensus. कौन सा? ये 13 जुलाई है क्या? 13 जुलाई कहाँ पे है? Swami, should I read it for you? Everything is known as compound. All sense objects compound. ठीक है? To think that mind is simple, independent is dualism. Philosophical, the middle. अच्छा, superficial philosopher thought that the mind was an uncompounded substance. ये तो हो गया, इससे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, mind shows that mind to be compound and every compound must be held together by some outside force. So will is aspect which held together. ये तो हो गया। उसके आगे क्या है? यहाँ पे आगे क्या? इसके आगे just महाराज, just para. The agnostic say the idea of freedom is delusion. Is only proof. If the universal consciousness affirms this world, it also affirms freedom. Freedom means freedom of the will. The idea of free will. इसके बाद में that alone is free, which is one unconditioned. Everything is universe is struggling for completing the circle. कहाँ है? Freedom is of the will as it was before it became bound. अच्छा, freedom means freedom of the will as it was before it got bound. Now what is the question? The idea of free will is demonstrated every moment by man's struggle against bondage. Freedom means freedom of will. हमारी इच्छा जो है फ्री, हम इच्छा है तभी तो मैं चाहूँ तो मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दरवाजा लगा सकता हूँ। ये फ्रीडम ऑफ विल हुई कि नहीं हुई? जी जी जी। It became bound. Bound कैसे होगी महाराज? मैं नहीं कर सकता, मेरी इच्छा कम हो गई, मेरी कुछ जो है मेरी इच्छा है, मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं तो उड़ना चाहता हूँ, नहीं उड़ पड़ सकता हूँ। यानी मेरी इच्छाएं कई सब इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती। तो क्या है? फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ द विल एज इट वाज बिफोर इट बिकेम बाउंड। उसके बाद बाउंड हो। अभी मेरी बहुत सारी फ्रीडम जो है वो बंद हो गई है ना। नहीं महाराज, विल तो तब बाउंड हो जाएगा जब हम स्वार्थ के बीच में पड़ जाएंगे और उससे और कुछ चीज मांगेंगे, तब हम फ्रीली काम नहीं कर सकते। लाइक आपको मुझे कुछ काम करना है, आई एम नॉट फ्री, ऐसे है ना। ऐसा है, यहाँ ये बता रहे हैं obviously freedom has some freedom, will has some freedom also, and will is bound also. इस प्रकार से जी महाराज, वो पहले कह चुके हैं ना महाराज। if mind is a compound and bound by the combination of outside forces, हमारा जो माइंड है वो फ्री विल नहीं है, it is bound by the combination of outside forces. outside forces तो गवर्न करती हैं। दो फ्रीडम हो गई ना, पहले तो एक बाउंड फ्रीडम हो गई और एक फ्री फ्रीडम हो गई, फ्री विल हो गई। एक बाउंड विल हो गई और फ्री विल हो गई।
जी जी तो महाराज। हमारी विल जो है वो बाहर के फोर्सेस से दब जाती है, जी लेकिन दब एक जाती है। फ्रीडम है, यानी फ्रीडम इन मैन इज नाउ ए मियर मेमोरी एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स फ्रीडम। हम लोग इतने बाउंड हो गए हैं, हमारी जी जी। जो फ्रीडम है वो काफी कम हो गई है, ये समझिए। इसका मतलब जब हम पहले when we were not governed by the forces of nature, then we were free. यस, जी महाराज, जी महाराज। Next question महाराज, July 14. Pantheists say that God has nature or this world. महाराज इसमें और संख्य योग में क्या फर्क है? कहते गॉड इज दिस वर्ल्ड, परमात्मा जो है, ये दुनिया जो है जो परमात्मा ही है। लेकिन संख्य जो कहता है कि वो नेचर अलग है, नहीं नहीं, वो सांख्य है जो कुछ है, मतलब। सुनो, जी महाराज। सांख्य जो है वो जड़ और आत्मा को हमेशा पृथक करता है। जी जी महाराज। सांख्य में ईश्वर नहीं है, जी आत्मा है और जड़ पदार्थ है। जी। मिला क्यों रहे हो सांख्य को? वेदांत में वही मैं है। पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि आत्मा, पहली बात तो ये कि सांख्य में ईश्वर नहीं। जी जी जी। सेकंड और बात, दूसरी पैंतीस बात, कहते हैं सुनो, दूसरी जी बात महाराज। यह है कि सांख्य में आत्मा और जड़ पृथक है, जी जी। जबकि वेदांत कहता है कि जो जड़ देख रहे हो वो भी सब चैतन्य है। चैतन्य है। और वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं, एक आत्मा नहीं है। हाँ, वही तो सांख्य बोलते हैं, बहुत सारी आत्मा बोलते हैं। ये 35 से कहते हैं कि ये वर्ल्ड ही जो सब गॉड है, ये वर्ल्ड इज एवरीथिंग। हाँ, वही तो होता है, वेदांत ये कहते हैं। वेदांतिस्ट है, ये वेदांतिस्ट भी महाराज, ये पैंथीस्ट का जो है, हैं? जो पैंथीस्ट है, पैंथीस्ट, क्या बोल रहे पैंथीस्ट, हो? पैंथीस्ट महाराज, पैंथीस्ट जो है। नहीं सुना, नहीं था, समझ नहीं आ रहा। महाराज हमारे आवाज आ महाराज रही इज है? आस्किंग व्हाट इज पैंथीइज्म। पैंथीइज्म, अरे तुम बस क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? पैंथीइज्म यानी तो हुआ भगवान, कई भगवान है। भारत में बताया ना, काली, दुर्गा, शंकर, शिव, राम, ये इतने भारत में पैंथीइज्म, ये मान लिया पैंथीइज्म हो गया। जब बहुत सारे भगवान हो गए पैंथीइज्म। वो तो मोनोथीइज्म पॉलिथिज्म यानी होगा एक भगवान, मोनोथीइज्म यानी एक भगवान। अरे यहाँ तो झगड़ा करते हैं ना, तब काली को नहीं प्रणाम करेंगे। जी जी वहाँ थोड़ी ये मान के प्रणाम करते कि यही ब्रह्म मेरा भगवान है, ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये पैंथीइज्म हो गया। ठीक ठीक महाराज। हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेटाफिजिक्स इज द थ्रेड टू बाइंड द फ्लावर्स इनटू ए बुके। मेटाफिजिक्स इज द थ्रेड टू बाइंड द फ्लावर्स इनटू ए बुके। इसका क्या मतलब, क्या मुझे समझ नहीं आया। मेटाफिजिक्स यानी विचार। जी जी महाराज, इज द थ्रेड टू अब बाइंड द पढ़ो। फ्लावर्स इनटू ए बुके। हाँ, मेटाफिजिक्स, कौन से फ्लावर्स है ये बोलो, क्या बोला है वहां पे? एक बुके बन जाता है उसका। हाँ, वही हुआ। फ्लावर्स मींस डिफरेंट रीजंस महाराज। हैं? फ्लावर्स का क्या मतलब यहाँ पर, फ्लावर्स का? वहां जो मेटाफिजिक्स पढ़ो ना उसको पूरा, मेरे को डेट बोलो। जुलाई 14 महाराज। Yes. Sir, paragraph. कौन सा पैराग्राफ? मेटाफिजिक्स का पैराग्राफ नहीं है मेरे पास। तो क्रिश्चियनिटी आ गया, उसके बाद मेरे पास पैरा नहीं है, तो देखना पड़ेगा। चलो। मेटाफिजिक्स की बात हो रही है। देखो, मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है विचार, यानी फिजिक्स का, साइंस में जैसे फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स जो होता है उसी प्रकार से मन के स्तर पे हो गया मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। हाँ, वो कह रहे हैं कि उसके तट से सभी जो फ्लावर्स है वो इकट्ठे हुए हैं ना, फ्लावर्स मेटाफिजिक्स के द्वारा, जी द्वारा। मेटाफिजिक्स फ्लावर्स तो की बात विचार कर के रहे हैं। द्वारा है।
जी जी कहाँ है? 14 पेज 14 नंबर वो है ना, 8 पेज नंबर महाराज मेरे पास नहीं है, मेरे पास पेज नंबर 14 में कौन सा पैराग्राफ? जुलाई 14 में तो बुक नहीं है हमारे। हाँ, दिलीप भाई बोलो तो। जी मैं आठ। महाराज जी ये है महाराज? फिजिक्स साइंस इज टू फाइंड आउट फैक्ट, अच्छा मेटाफिजिक्स ठीक है, मिल गया। द फ्लावर्स इनटू पॉकेट। फिजिकल, देखो फिजिकल साइंस फाइंड्स द फैक्ट्स, जी महाराज। यानी विज्ञान जो है वो पता लगाता है कि ये एटम इस प्रकार से काम करता है, ये करता है, वो इससे पता लगाता है कि ये पानी जो है वो नीचे गिरेगा, पानी ऊपर नहीं जा सकता। ये हुआ फिजिकल साइंस ने फैक्ट पता लगाए। मेटाफिजिक्स इज द थ्रेड टू बाइंड दीज फ्लावर्स इनटू ए बुके। इन विचारों को जो विचार के द्वारा, मेटाफिजिक्स है विचार, दर्शन, ये दर्शन के द्वारा जो फिजिक्स है, फिजिकल जी। साइंस जो है, उनको मानो बांधकर एक सुंदर गुलदस्ता बनाया गया बुक है। और जी विचार की बात है। जी जी चलो। महाराज। चलो ठीक ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज जी, मैं आश्रम पहुंचने वाला हूं, अगर अभी सवाल नहीं पूछा तो मैं कर ही नहीं पूछ पाऊंगा। लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो। हाँ महाराज जी, मैं फर्स्ट जा रहा हूँ क्वेश्चन महाराज जी, on page 45, first para, Swamiji says, Raja Yoga is the only science of religion that can be demonstrated. So what is it meant? What is meant here? मतलब ये है, राजयोग बोलता है कि अगर तुम इस प्रकार से बैठकर ध्यान जब करोगे, ऐसे सीधे बैठकर प्राणायाम करोगे तो ये फल होगा। Okay. अगर मैं भी Just करता हूँ, तुम भी करो, तुम भी फल पाओ। हाँ, just like an experiment, right. बिल्कुल साइंस की तरह। Right. नो फेथ इज रिक्वायर्ड, फेथ की जरूरत नहीं है। जी। इसलिए तो इतना पॉपुलर हो रहा है ना विदेश में, फेथ की जरूरत नहीं है, तो सीधा हाँ करो। जी। On the next page, Swamiji says, Buddha was the only great philosopher who would not recognize caste, etc. And all other philosophers pandered to social prejudices. A bit of vulture remained in them. इसका क्या अर्थ हुआ हमारा? मतलब ये है कि उसमें कास्ट के जो प्रिविलेज होते हैं ना, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ तो उसको कुछ प्रिविलेज हो गया ना। हाँ। तो उस चीज को पकड़े रहे, यहाँ पे कोई प्रिविलेज होगा। तो और कह बुद्ध रहे ने सारे कास्ट को निलाई कर दिया, नो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ने सब बराबर कर दिया, सारे कास्ट को उन्हें प्रिविलेज को निलाई कर दिया। हाँ, तो अदर फिलोसोफर्स जो कह रहे हैं, जो जिनमें वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वल्चर का हाँ एक वल्चर है ना, टेंडेंसी रह गया, ये कौन फिलोसोफर है? बाकी यानी सारे हिंदू फिलोसोफर्स उन्होंने कास्ट मान के रखा, ओ क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ है। राइट। तो डज शंकराचार्य आल्सो कम इन दिस? यस यस, शंकराचार्य तो महाभाव पक्के थे, राष्ट्रवादी। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। जी, ठीक है महाराज। एंड महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 49, स्वामीजी सेज, he who makes all sacrifices to himself, the Atman, he alone knows Brahman. तो ये sacrifices to himself, सेक्रीफाइस ने Atman यज्ञ क्या अर्थ हुआ? हाँ यज्ञ गीता में चले जाओ, चौथे चैप्टर में इतने सारे यज्ञ बताए गए हैं। हाँ ज्ञान यज्ञ है, जी। यह ज्ञान यज्ञ है, वो सबसे श्रेष्ठ है, बाहरी नहीं है, सब पता। और गीता में पंच वो भी है, और पंच यज्ञ है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, ये है ना। हाँ, तो ये पंचयज्ञ, यज्ञ जो है बिल्कुल बहुत व्यापक है। अच्छा, अब इसको पढ़ो तुम। तो ये तो he who makes all sacrifices to himself, आत्मन को, हाँ, आत्मा को आत्म यज्ञ, अच्छा, आंतरिक यज्ञ है, बाहरी यज्ञ नहीं है। हाँ यानी जो भी कर्म कर रहे हैं वो आत्मा को, परमात्मा को आहुति के रूप में कर रहे हैं, इंटरनल। हाँ, ठीक है महाराज, समझ गया महाराज। ये मेरे सवाल तो ये तीन ही थे, चौथा मेरा आपका था कि अगर आप चाहें तो वो
जुलाई 13 वाला कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, उसमें काफी क्या है बोलो डिफिकल्ट। बोलो बोलो नहीं बोलो वो क्या था? नहीं महाराज, वो तो वो पूरा टेक्स्ट ही मुझे जुलाई 13 का थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ना। वो अभी रहने दो, तुमको तो- जाना भी है बाद में। हाँ, तो आई थिंक वी कैन लीव दैट, स्किप दैट। ओके अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अच्छा इतु घोष है, इतु नहीं है, इतु नहीं है। मालिनी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया? Nahi, Swamiji, should I read it? It's because I want you to explain it. मालिनी Yes, बोलो। Swamiji. हाँ पूछो पूछो। July 13, the idea of unthinking philosophers was that the mind was a simple, and this led them to believe in free will. Psychology, the analysis of the mind, shows the mind to be a compound, and every compound must be held together by some outside force. So it's bound by a combination of outside forces. Swamiji, actually you answered this with a beautiful word you used today. You said sahaj, that when you become pure, you become sahaj and simple, so then complications don't remain. Is that right? Is that the answer? तुम्हारा माइक जो है ना वो थोड़ा सा गूंजता है। नहीं स्वामी जी, आज क्या है, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है तो ये इससे कर रहे हैं, मोबाइल से कर रही हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा सा एंगल उसको चेंज करो तो। मोबाइल का? हाँ हाँ अभी? हाँ हाँ बेटर बेटर। हाँ स्वामी जी, आपने एक बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, सहज, टुडे। हाँ, हाँ मतलब आपने कहा कि देखिए जो पवित्र आदमी पवित्र हो जाता है तो सब ज्ञान सहज उमड़ जाता है बाहर। हाँ, does this mean that कि क्या simple? 13 जुलाई ना? हाँ, that the idea of the unthinking philosophers was that the mind was a simple, and this to them to believe in free will. इतने प्योर थे कि दे उनको कुछ, आपने ये बोला, जो पुराने सुपरफिशियल फिलोसोफर ने कहा कि माइंड जो है वो अनकंपाउंडेड है और उसको फ्री विल है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसको बनाया कि माइंड जो है वो कंपाउंड है। तो कंपाउंड भी हो गया तो उसमें आउटसाइड फोर्स होना चाहिए, इसलिए विल भी जो है ना वो भी उसको विल में भी कंपाउंड की बात आ गई। ये थिंकिंग से कॉम्प्लिकेशंस हो गया। दैट्स ऑल, दैट इज नथिंग मोर यू टेक। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच स्वामी। महाराज जी एक मिनट, व्हाट इज फ्री विल? क्या फ्री विल क्या होगा? मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन करूँ, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन नहीं करूँ, ये मेरी फ्री विल हो गई। आज लेकिन कुछ लोग कहते हैं फ्री विल जैसे कुछ नहीं है, हमारे इतने सैकड़ों संस्कार पड़े हुए हैं, वो सब चला रहे हैं हमारी विल जी, इसको लेके झगड़ा होता रहता। अच्छा, अब कौन बचा भाई? मैं बचा हुआ हूँ अभी। दिलीप भाई। मैं स्वामी जी प्रणाम। I joined late because I couldn't. रीता Yes स्वामी जी। अब बोलो। मैं पूछूं? पेज 48। तुम्हारे तो you have got 7 questions out of 1, okay? I'll quickly ask them स्वामी जी। Okay, बोलो। Page 48, third para middle. Swami Vivekananda says that which says I is Brahman, but although we day and night perceive him, we do not know that we are perceiving him. As soon as we become aware of this truth, all misery goes. So we must get knowledge of the truth. Reach unity, no more duality will come. But knowledge does not come by sacrifice, but by seeking, knowing the Atman.
My first question is, why do we not know that we are perceiving Brahman? Because of ignorance. Pardon me, Swamiji? Because of ignorance, we are not seeing. Because of ignorance. Your reason why? Because of ignorance. Because of and this again is becoming so difficult to remove. No, ignorance है. This ignorance. Because of what you may call it, बड़ा किताब में तो लिखा है कि हम ब्रह्म हैं. हाँ. अगर समझ में आती है ये बात? Yes. नहीं समझ में आती ना? हाँ. Because of ignorance, अज्ञान के कारण. अज्ञान रिमूव करने के लिए हम जो जब सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा. हाँ. How to get knowledge of by this? श्रवण मनन निधिध्यासन अज्ञान जाएगा. Shravan Nididhyasana. Yes, Swamiji. Third question, what should be included in our daily worship so that we get knowledge of the truth? Reading of Vedanta. Every day you must read Vedanta. Yes, Swamiji, reading Vedanta. Any text to take up one book and read one at a time. Vivek Chudamani. Vivek Chudamani. And then how to reach unity? What should one meditate on to reach unity? Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Then what is the process of seeking God? Puja, bhakti, swadhyay, dhyan, jap. ये है process. What is to be done every moment, even while working to know Atman? Constant remembrance of God. Constant remember that I am Atman. Constant remembrance. Swamiji, इसमें can we internally one can go on chanting Nirvana Ashtakam? थोड़ा एकाग्र करके चैंटिंग, मुंह से चैंटिंग कर रहे हैं ना, मन सैकड़ों चीजें संसार में जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता. अच्छा. Yes, Swamiji. So what is constant remembrance that I should remember He is with me, that the Lord is with me. And my second question, page 60, Swamiji says, can you make yourself at rest even for a second? All yogis say you can. How to make oneself rest? What is to be done? Oh yes, so many things you have read. You should be able to answer this question. Yes, I am able to answer, but I don't think my answer is correct. Next time you should answer this question. Okay, Swamiji. Thank you, Swamiji. Thank you. दिलीप भाई, तुम्हारे क्वेश्चन हो गए ना? नहीं महाराज जी, कल मेरे नहीं हुए. चलो शुरू करो. जी. और शिवानी जी चंडीगढ़ गई है. चंडीगढ़ आश्रम में शिवानी चली गई. ठीक है, कोई बात नहीं. महाराज जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज 45. We may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. Maharaj ji, what Swamiji wanted to say further, how Rajyog can be. अच्छा सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है ना, कौन सा पेज पे बोलो? सर फर्स्ट पेज पे ये जुलाई 9 का. नहीं, डेट बोलो, डेट. पेज मेरा है. डेट जुलाई 9 फर्स्ट पैराग्राफ और 7वीं लाइन. हाँ, पढ़ो, आपको उसको पढ़ो. How तीनटा टाइप दिखते हो? We may satisfy ourselves. ये तो मना कला बासन मुंह मार्जिनी का है बोलो. अरे के भाई रीता, बंद करो फोन. We may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. महाराज जी. ना, पेज हो गया. 9 जुलाई ना? हाँ, 9 जुलाई फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग है और 7वीं लाइन है. Man as Atman is really free. नहीं, उसके जुलाई 9 के ओपनिंग में ही 7वीं लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ. और we may satisfy ourselves. Each one must prove it for himself. We may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. Raj Yoga is the only science of religion that can be demonstrated.
अच्छा, तो अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी, what Swamiji wanted to say by this that we may satisfy ourselves and not others. यहाँ पे तो दूसरों तुम्हारे फोन का एंगल ठीक करो तो। नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आई एम वेरी क्लियर ऑन। नहीं, फोन का मोबाइल का एंगल ठीक करो। महाराज जी, मैं तो कंप्यूटर पे हूँ, बिल्कुल क्लियर एंगल पे हूँ। या और कहीं अच्छा, से ठीक है। तो क्या कहते हैं, each must satisfy himself. We may Yes. satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. ठीक तो है। अब प्रश्न हाँ। क्या है? तो मेरा सवाल ये क्या मीनिंग इसका क्या है? We may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. तो किसको हमें सेटिस्फाई करना है? अरे तो किसको नहीं, मैंने पेट भर के खाना खाया तो उससे दूसरा थोड़ी खाना कुछ खाना पेट मिल जाएगा। अगर आपका दोस्त जो है उसको सेटिस्फाई, अगर आप किताब पढ़ोगे, आपको अच्छा लगा, ध्यान किया और आपको साक्षात्कार हुआ, तो उससे आपको संतोष हुआ, दूसरे को संतोष थोड़ी दे सकते हो आप। अच्छा, राइट महाराज जी, यहाँ तो सेटिस्फेक्शन हो गया आपने बताया, बट फर्दर हाउ राजयोग कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड? कंटिन्यूअस नहीं, हटी हो गया। नहीं, जैसा मैंने किया है वैसा वैसा तुम करो, तुमको भी वही फल मिलेगा। राजयोग जो है ना, हाँ, यस, तो जैसा तुमने किया, इसमें रोज बैठ के ध्यान करो, प्राणायाम करो, तो जिसका जो फल मिलेगा जरूर मिलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है भगवान को जान मानना। इसको प्रूव किया जा सकता है। और इसीलिए तो विदेश में लोग सब राजयोग चल रहा है ना, सब योगा चल रहा है। उसमें भगवान मानने की जरूरत नहीं है, सब करते हैं क्योंकि हम करेंगे तो वैसा वैसा फल मिलेगा। वो एलिवेशन हो, क्या होता है वो, ऊपर उड़ने लग जाते हैं ना, हवा में उड़ने लग जाते हैं, कहते हैं हम प्राणायाम करो उसमें हो लग जाओगे। यही बोल रहे हैं। ये है कि that can be demonstrated and only what I myself have proved by experience do I see. राजयोग is only science which can be demonstrated. यानी स्वामी जी ने ये बताया कि उन्होंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है और यानी उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। मैंने जो किया है तुम भी करो, तुमको भी वही चीज मिलेगी। वेरी राइट। महाराज जी, उसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, आपने की 3 लाइन, शंकरा डिक्लेयर्स दैट ऑल वर्क्स गुड एंड बैड आर अगेंस्ट नॉलेज। इट मींस कर्म योग इज अगेंस्ट ज्ञान। व्हाट राइचुअल डीड्स डन बाय पीपल्स एंड आउटसाइड, ये सब बंधन है। जो कर्म करो ना, बढ़िया काम करो, हाँ, तो दान करो, जी, यज्ञ करो, ये सब में तो अहंकार होगा, बड़े जम के फंसोगे तुम। ओके, सभी कर्म बंधन के हैं। बड़े बढ़िया कर रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, दिन से सुबह शाम कितना काम करते हो, बढ़िया करते हो, अरे बंधन में फंस रहे हो और कुछ नहीं है। ये तो कहने का, और ये तो क्या हम लोगों ने ये कर्मयोग बंद कर देना चाहिए या कर्म योग कहाँ हो रहा है, ये कर्म हो रहा है, कर्म योग कहाँ हो रहा है? राइट, आपने बताया था कि इसको निष्काम कर्म समझ कर करो। हाँ, निष्काम कर्म करोगे तब बंधन कटेगा, नहीं तो सब बंधन का कारण है। बढ़ जाएगा बल। महाराज जी, पेज 46 सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, अनआइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस when differentiated becomes the world. Unidentified consciousness when differentiated becomes the world. ये पेज नंबर 46 का सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। Unidentified consciousness. Yes, when differentiated becomes the world. निर्गुण निराकार, अनआइडेंटिफाइड निर्गुण निराकार ब्रह्म जी, और साकार हुआ, डिफरेंशिएट हुआ तो वो संसार हो गया। हाँ, तो ये महाराज जी समझ नहीं आया, साकार कैसे है? अनआइडेंटिफाइड यानी अनडिफरेंशिएटेड है ना। हाँ, यानी निर्गुण निराकार हिंदी में बोलेंगे तो। अच्छा जी, उसको समझाने के लिए अनआइडेंटिफाई कर दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 47 फर्स्ट पैराग्राफ, July 10
महाराज जी 10 July 10 ठीक है, हाँ 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 Maharaj ji, is Sufism is a separate religion and is a combination of Hinduism and Mohammedism. देखो यहाँ लिखा हुआ ये क्लियरली लिखा है सूफीज्म जो है हाँ ये मोहम्मदिज्म के आया था, हिंदू और मोहम्मदन का मिलने से सूफीज्म पैदा हुआ है, जी हाँ ये लेकिन ये सेपरेट रिलीजन नहीं है। तो ये अलग क्या से है? सेपरेट जो धर्म की एक लाइन लिस्ट बनाओगे, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो हाँ, उसमें सूफीज्म एक अलग से सेपरेट रिलीजन के नाम से नहीं आता। नहीं महाराज जी जो ये कश्मीर में इसको एक्सेप्ट किया गया है तो ये क्या अरे है? कुछ नहीं हुआ, कहा कश्मीर में मुसलिम इस्लामी और कुछ नहीं। Sufism is a part of Islamic dharma. हाँ इस्लाम पेज नंबर 47 पे ही है। Buddha was the first human being to give the world a complete system of morality. Maharaj ji, my question is, what is complete system of morality? यानी उन्होंने मोरालिटी को ऐसा नहीं कहा कि ये राजा हो तो इस प्रकार करेगा और जो जो फकीर हो इस प्रकार करेगा, जी जी वो फलाना व्यक्ति इस प्रकार करेगा, ऐसा डिवीजन नहीं किया। कंप्लीट सिस्टम सब एक प्रकार से सबके लिए उन्होंने मॉरलिटी दी है, नैतिकता का एक पूरा कंप्लीट सिस्टम दी। तो महाराज जी कंप्लीट सिस्टम, नैतिकता की पूरी कंप्लीट सिस्टम दी है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, तुम राजा हो या रंग हो, ये मॉरलिटी है, ये नैतिकता तुमको मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए, अहिंसा मानना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कंप्लीट मॉरलिटी उन्होंने दी है। जो मॉरलिटी कि भाई ब्राह्मण है तो वो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। Maharaj ji, next question. The world has come to know God through the Vedas. Maharaj ji, my question is the presence of God is realized through Vedas? Maharaj ji, the religion like Christianity and Islamic religion, they also got the knowledge from the Vedas. As Vedas are नहीं, तुम्हारे फिर से ये पढ़ रहे हो क्या? तुम एक बार क्वेश्चन कर रहे हो, कहाँ पे है ये बोलो तो, कौन सा डेट, क्या तारीख? वही सन डेट के अंदर ही मैं चल रहा हूँ, 10 जुलाई का। हाँ जहाँ ये पेज नंबर 48 फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। He did good for good sake, वो तो हुआ बुद्ध की बात हो गई ना? नहीं, ये the world has come to know God through the Vedas. No other way. There is no other way. हाँ वेदास की बात हो रही है ना? हाँ वेद की बात हो रही है। हाँ, the world has come to know God through Vedas. Yes, and no other way. Yes, now No my other way is there. yes, now my question is, the presence of God is realized through Vedas only. Maharaj ji, the other religions like Christianity, they also got the other religions. My question, the other religions like Christianity and Islamic religion, they also got the knowledge from Vedas. As Vedas are much older than the Christianity and Islamic religion. नहीं. Originally, there was only one religion, that is Hindu religion, and all other religions are offshoots and branches of Hindu religion. ये दिलीप शाह की थ्योरी है। हाँ, ये दिलीप शाह की थ्योरी है। जी, पर मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदास जब 5000 नहीं अनलिमिटेड ईयर्स पुराना है, और ये क्रिश्चियनिटी ये सब 3000-4000 साल की है, तो उनमें सब उसके गुण आए होंगे ना वेद के? नहीं तो वेद तो 5 हिंदू भारत में थे, क्रिश्चियनिटी तो पता नहीं कहाँ से पैदा हुई है। ये नहीं, इसको सिद्ध करके क्या फायदा क्या होगा तुम्हारा? नहीं महाराज जी,
हम सिद्ध अरे कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी अलग हुई है, वेद से अलग हुई है। हाँ और ये आगे कुछ लोग इसके अंदर बोलते ही हैं, है। अरे कुछ लोग बोलते हैं कि वेद से क्रिश्चियनिटी हुई है। अभी झगड़े में क्यों पड़ रहे हो तुम? अच्छा ओके, हाँ, ये फालतू की बात कर रहे हो। नहीं हमारा जी फालतू की बात नहीं, हमारा सिर्फ यहाँ पे कहना ये था कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक धर्म के अंदर मानते हैं और उसमें कोई अच्छाइयाँ है, हम ये समझते हैं कि हमारी वेद में जो अच्छाइयाँ थी वो उधर ली गई है, वी आर प्राउड ऑफ दैट, दैट इज व्हाट माय फीलिंग। नहीं, अरे सब जगह अच्छाइयाँ होती है, मानव में सब जगह अच्छाई होती है। क्यों? लोग वेद के कट्टरवादी बोलते हैं कि वेद सब कुछ वेद के अंदर ही है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। अच्छा ये कौन मानेगा तुम्हारी बात? अच्छा अरे जैन भी नहीं मानेंगे, बौद्ध भी नहीं मानेंगे, ईसाई भी नहीं मानेंगे। ओके जी 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 महाराज जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पेज 48 लास्ट पैराग्राफ। Maharaj ji, Vedas have two types of knowledge, highest and lowest. Highest is Brahman and the lowest is science. What is the meaning of the lower knowledge of the science? Maharaj ji, Vedas also have unessential knowledge. What is the meaning of unessential knowledge and from whom is it? Brahma, the knowledge of Brahman is higher knowledge, and lower Yes, knowledge is science. This is the teaching of Mundika Upanishad. Now, what is your question? highest Brahman and the lowest Brahman is the science. What is ठीक the है। meaning of the lower knowledge of science? Lower नहीं, knowledge यहाँ of, पे लिखा है the lower knowledge is science. हाँ ये क्या science क्या? This is the teaching of Mundaka Upanishad. Yes, और आगे भी है. The unessential is the part of the Vedas dealing with the worship and ceremonial. All The are unessential is a part of the Vedas which is deal with worship and ceremonial. अच्छा. हाँ. Also all secular knowledge. जी. तो यह जो लौकिक ज्ञान है, हाँ जो क्रिया अनुष्ठान पूजा से संबंधित है, जी. ये भी जो है वो वेद का अंश है, लेकिन गौण अंश है, सेकेंडरी है, अनइम्पोर्टेंट है। ओके जी. तो उसे समझने का क्या है? नहीं महाराज जी, यही मैं इसके अंदर लोअर और हायर क्या होता है, ये जो वेद इसके अरे अंदर वेदों में दोनों प्रकार की चीजें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है, कुछ अनइम्पोर्टेंट है, यही बताने का कोशिश किया था। ओके अच्छा, पर इसका पहले वाला जो सेंटेंस था साइंस का, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म नॉलेज इज हायर नॉलेज, लोअर नॉलेज इज साइंस। यस हाँ, तो व्हाट इज साइंस? अरे यही लोअर नॉलेज। नहीं पर साइंस किसको, जो आज हम साइंस यानी क्रियाकांड भी साइंस हो गया। अच्छा, ये क्रियाकांड को बताया इन्होंने, हाँ। नॉट दिस साइंस जो अब तुम यहाँ पे साइंस के ले लोगे तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है बाबा। अच्छा ओके, दैट इज व्हाट। ओके 49 nothing is entirely physical, not yet entirely metaphysical. Maharaj ji, what we understand is the word, ये तो हाँ, that am I correct? Metaphysical किसको कहेंगे? कहाँ है? Page 49, हाँ, second paragraph, first line, without love. कौन सा जुलाई डेट? जुलाई 11 का पहला सेंटेंस है। अच्छा, वो तो विदाउट मदर लव नो क्रिएशन इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट, नथिंग इज एंटायरली फिजिकल और yet entirely metaphysical. तो ये प्रश्न क्या है उसके बाद में? मेटाफिजिकल, फिजिकल। अच्छा, मेटाफिजिकल यानी जड़ समझना पड़ेगा कि जो वस्तु है ना, हाँ, तो सब कुछ, प्रत्येक वस्तु जो है वो केवल फिजिकल नहीं है, उसमें मेटाफिजिकल भी है, यही लिखा है ना। हाँ, Nothing is entirely physical, not yet entirely metaphysical. जो मेरे पास टेबल है वो entirely केवल जड़ नहीं है, इसके साथ में कुछ उसका दर्शन भी मिला हुआ है, फिलॉसफी मिली हुई है कि लकड़ी को इस प्रकार से मिलाकर उसको सीधे लगाओगे तो टेबल बन जाएगी, टेबल पे पढ़ाई हो सकती है, चीजें रखी जा सकती है। तो एक कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु है,
उसके पीछे जो भाव है उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, वो सबके पीछे रहता है। अच्छा, जी महाराज जी। Now, page 50, Maharaj ji, what is the reason when one religion, Hinduism, was older than Buddhism? How come Buddhists converted 3/4 of the world at one time by pure gentleness? Page कहाँ number, बोलो, 3 old Hinduisms हो गए, होगा। हाँ, Buddhism never killed, but at one time converted 3/4 of the world by yes, pure. yes, कैसे? जी हमारा महाराज जी। प्रश्न है कैसे किया? हाँ, ये कैसे किया इन्होंने? कैरेक्टर के द्वारा, जी, क्योंकि मोहम्मद कैरेक्टर, चरित्र के द्वारा। नैतिक जीवन, चरित्र, सदाचार, इसके द्वारा। अच्छा, तो ये हम नहीं कर पाए, हिंदुइज्म के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो। क्योंकि हम जाते नहीं थे भारत से। बौद्ध लोग जो हैं वो चरित्रवान व्यक्ति, सन्यासी सारे विश्व में घूमे ओके जी, और उन्होंने परिवर्तित किया। ओके ओके जी महाराज जी। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन, thus religion begins where philosophy ends. Page 50, last line, paragraph, page 50 हाँ, की, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। thus religion begins where philosophy ends. हम्म। तो तो महाराज जी प्रश्न ये क्या है आपका? हमारे जहाँ पर बकवास बंद हो जाएगी और जीवन में उतारने का प्रयत्न करोगे तब धर्म शुरू होगा। ये फालतू वाद विवाद तर्क से बौद्धिक विचार धर्म नहीं है। ये यहाँ जूम मीटिंग हो रही है, ये धर्म नहीं है बाबू, याद रखना। बट फिलोसॉफी भी रिलीजन के अंदर ही जुड़ी हुई है ना नहीं महाराज? नहीं नहीं, बिना फिलोसॉफी के भी आदमी बहुत बड़ा संत हो सकता है। तो महाराज जी बराबर थ्रू आउट ये हमने देखा कि कभी किसी ने कांट का रेफरेंस दिया तो कभी किसी ने पेकॉल का रेफरेंस दिया, दे ऑल आर फिलोसोफर्स। हाँ, वो लोग कांट कांट वगैरह वो फिलोसोफर्स हैं, तो उससे धर्म से क्या लेना देना? अच्छा, ओके, तो देयर इज नथिंग लाइक फिलोसॉफी विद रिलीजन। नहीं, वो दोनों चीजें अलग चीजें हैं भाई, दोनों एक साथ हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। ओके, अच्छा, दूसरा इसमें लिखा है thus religion begins where philosophy ends. हाँ, ठीक है। यस, जब जब बकवास चालू बंद हो जाएगी ना तब धर्म चालू होगा। अभी बकवास कर रहे हैं ना, ये 2 घंटे हमने बकबक किए ना, इसको बंद करके जरा ध्यान जब करेंगे ना तब चालू होगा। जी महाराज जी, चलो प्रणाम महाराज, हम्म। दैट इज कंप्लीट। कोई जी, बचा और? प्रणाम महाराज। चलो कौन? ये आ गई शिवानी जी। अरे आ गए तुम वापस? खत्म हुआ ना? अच्छा, वहाँ खत्म अच्छा, हो इतनी गया। जल्दी खत्म हो गया? अच्छा, बोलो बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या? महाराज एक ही जस्ट मिनट, पेज 96, the panthers say God has become nature or this world. How God has become nature? अच्छा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जी, गॉड, हमने वी कंसिडर गॉड एंड नेचर सेपरेट। हमारी भगवान की धारणा ये है कि भगवान जो है वो कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ है और 4 हाथ वाला है, शंख चक्र गदा पद्म वाला है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो सर्वत्र है। जिसे तुम प्रकृति बोलते हो वही भगवान का रूप है। दैट इज व्हाट बीइंग टोल्ड। हुआ कि नहीं? ठीक है महाराज। हाँ जी महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, और कोई बचा कि नहीं? वो एक और थी ना, क्या नाम? नहीं मालूम नहीं। भूवी, भूवी वो भी नहीं है।
अच्छा तो हो गया सब, बंद करें? जी महाराज जी, हाँ। महाराज चंडीगढ़ आश्रम से सभी आपको प्रणाम कह रहे थे, अभी तो कौन सभी कौन? अंदर है। चंडीगढ़? हाँ जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, ठीक है। हाँ जी। तो तुमने कहा कि सभी नहीं लोग हमारी आपको तरफ से प्रणाम कह रहे थे। तुमने हमारी तरफ से ओम नमो नारायण बोला कि नहीं बोला? तुमको बोलना चाहिए था। अच्छा, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है? जी महाराज जी। ठीक, नमस्ते दिलीप भाई। दिलीप भाई नमस्ते, नमस्ते। मालिनी, प्रणाम very स्वामी good, जी। very good. You are now become active. Yes. प्रणाम स्वामी जी। गाना तो फिर कुछ बोलती नहीं है, सब सुनती है बस। महाराज मैं सुनती हूँ। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। विनोद भाई, वेरी गुड। प्रणाम। अच्छा, प्रणाम नमस्कार। स्वामी